Hey, lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. तो हमने अपने चैनल पे एक इम्पॉर्टेंट सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया है एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज ऑफ लेक्चर इज ड्रग्स विच आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ थायराइड कंडीशन. So in our previous video lectures, we understood कि ये जो thyroid hormones होते हैं, that is our T3 as well as T4, ये हमारे human body में synthesize कैसे होते हैं, ये हमने पिछले video presentation में देख लिया था. Now in our today's video presentation, we are going to start with a very important concept, and that is the treatment of our hypothyroidism condition, as well as we are going to start with the treatment of hyperthyroidism. Now हमने पिछले वीडियो प्रेजेंटेशंस में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब पेशेंट में T3 एंड T4 का जब लेवल कम हो जाता है, then that condition is known as hypothyroidism. एंड जब पेशेंट में T3 एंड T4 का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है, that condition is known as hyperthyroidism. So in the drugs which are useful in the treatment of hyperthyroidism, वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं जो कि T3 एंड T4 के लेवल्स को कम करते हैं. So in our today's video presentation, we are going to start with our two important class of medication. The very first one is known as sodium iodide symporter inhibitor, and the second class that we are going to study is about the thyroid peroxidase inhibitor. So without wasting any further time, let us get started with the drugs used in the treatment of hypothyroidism. Now हमको एक important बात पता है that in the patient who is suffering from hypothyroidism, वहाँ पे उन patient में the levels of T3 and T4 कम होने वाले हैं. Now अगर किसी patient में T3 and T4 का level अगर कम है, तो डेफिनेटली वो लेवल को हमें बढ़ाना पड़ेगा. एंड अगर हमको T3 एंड T4 का लेवल हमको बढ़ाना है, then directly we can give our important drugs which will increase the level of T3 and T4. तो यहाँ पे as you can see on your table, यहाँ पे ये जो T3 होता है that is known as triiodothyronine, एंड ये जो T4 होता है that is known as tetraiodothyronine. Now there is a very important drug, and the name of that particular drug is liothyronine, and जो T4 वाली जो ड्रग होती है that is known as L, that is levothyroxine. Now talking about few important specific characteristic of our T3 as well as T4. ये जो T3 होते हैं this is known as the active hormone, and ये जो T4 होता है that is considered relatively less active hormone. T3 is considered as a short acting, and ये जो T4 होता है ये long acting होता है. Now just think logically, अगर आपके पास एक पेशेंट आता है who is suffering from the condition of hypothyroidism, आप उन पेशेंट में क्या देना प्रेफर करोगे? क्या आप T3 देना प्रेफर करोगे या फिर आप T4 देना प्रेफर करोगे? तो द आंसर इज वेरी सिंपल. ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है ये लॉन्ग एक्टिंग मतलब लाइफ लॉन्ग होती है. तो डेफिनेटली इफ अ कंडीशन इज अ लाइफ लॉन्ग, तो हम ऐसा ड्रग प्रेफर करेंगे जो लॉन्ग एक्टिंग हो. तो द ड्रग ऑफ चॉइस इन द कंडीशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज लीवोथायरोक्सिन. नाउ द क्वेश्चन इज कि हम ये जो लायोथायरोनिन जो ड्रग है वो कहाँ पे यूज करेंगे? तो इन द कंडीशन ऑफ मिक्सेडीमा कोमा. नाउ व्हाट इज दिस मिक्सेडीमा कोमा? मिक्सेडीमा कोमा का मतलब होता है whenever there is a severe hypothyroidism in the case of adult, that condition my dear friend is known as myxedema coma. तो myxedema coma में we can use liothyronine, that is our T3 हम यूज कर सकते हैं.
Now the question is, why in the condition of myxedema coma we are giving the patient T3? The answer is very simple. ये जो T3 होता है that is the active hormone, and अगर कोई particular hormone अगर active है तो definitely वो जो particular drug है that will act rapidly, and rapidly जो patient में thyroid के levels पहले कम थे वो immediately वो जो drug है वो thyroid के level बढ़ा देगा, and we know कि ये जो T3 होता है that is the active hormone. So in the condition of myxedema coma we can use our drug that is liothyronine. Now आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या हम T4 नहीं दे सकते हैं in the condition of myxedema coma? The answer is हम T4 भी पेशेंट में दे सकते हैं. So in the myxedema coma we can use levothyroxine that is T4. बट ये जो levothyroxine होता है इसको हम इंट्रावीनसली पेशेंट में देंगे so that उसकी जो एक्शन है वो हमें जल्दी देखने के लिए मिले. बट टू बी वेरी प्रिसाइज ये जो T3 होता है that is more preferred as compared to T4 in the patient who is suffering from myxedema coma. Why? Because ये जो T3 होता है that is the active hormone and इसकी जो एक्टिविटी है वो जल्दी देखने के लिए मिलती है. So T3 is more preferred in the patient who is suffering from myxedema coma. Now ये जो T3 होता है इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द कंडीशन जहां पे हमको पेशेंट को रैपिडली यूथायरॉइड करना है. नाउ यूथायरॉइड कौन से कंडीशन में हमको पेशेंट को करने की जरूरत होती है? तो द आंसर इज इफ द पर्सन इज अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ सर्जरी एंड वहां पे अगर थायराइड का जो हार्मोन का लेवल है वो अगर रैपिडली डिक्रीज हो जाता है तो वी नो कि हमको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, and for that immediate effect we need to give the patient T3. So T3 is used to make the patient rapidly euthyroid. Now that was all about our condition that is of hypothyroidism. Now let us move on to our next important condition and that is our hyperthyroidism. Now hyperthyroidism के condition में क्या होता है? तो वी नो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के कंडीशन में जो पेशेंट में जो लेवल्स ऑफ T3 एंड T4 है वो इंक्रीज हो जाते हैं, एंड यहाँ पे हमको क्या करने की जरूरत है? क्या हमको T3 एंड T4 का लेवल और बढ़ाने की जरूरत है कि उसको डिक्रीज करने की जरूरत है? तो द आंसर इज कि हमको इन द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म वहां पे हमको थायराइड हार्मोन के जो लेवल्स है उसको कम करने की जरूरत है. सो वी नीड टू डिक्रीज द लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर very first important class of medication that is useful in the treatment of hyperthyroidism, that is our sodium iodide symporter inhibitor. नाउ जब हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे वहां पे आई टोल्ड यू फॉर द सिंथेसिस ऑफ अवर थायराइड हार्मोन वी नीड अ गुड अमाउंट ऑफ आयोडीन. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो आयोडीन होता है ये हमको कहाँ से मिलता है? तो द आंसर इज वेरी सिंपल. जो हम डाइट कंज्यूम करते हैं, एंड अभी तो जो सॉल्ट होता है वो भी आयोडाइज्ड होता है, तो डेफिनेटली जो हम सॉल्ट डाइट में कंज्यूम करते हैं इट इज ऑल्सो कंटेनिंग आयोडीन. तो थायराइड सिंथेसिस के लिए वी नीड अ गुड अमाउंट ऑफ आयोडीन. नाउ ये जो आयोडीन है इन अवर ह्यूमन बॉडी दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड आयन. नाउ ये जो आयोडाइड है that must enter into a very special type of cells, and that special type of cells is known as follicular cells. Now can you see in this particular image यहाँ पे you can see कि ये जो I minus है that is our iodide ion that is entering into our follicular cells, and ये जो iodide follicular cells के अंदर जो जाते हैं it is carried out by a mediator, and that particular mediator is known as sodium iodine symporter.
So we know for the synthesis of thyroid hormone, we need a good amount of iodine. For this, the iodide must enter into the follicular cells. Now, ये जो iodide है, that is transported by a symporter system, and that symporter system is known as sodium iodide symporter system. Now, just think logically. In the patient who is suffering from hyperthyroidism, अगर हमने ये सिम्पोर्टर सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, डू यू थिंक कि जो हमारे ब्लड में जो आयोडाइड आयंस प्रेजेंट है, दैट विल बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू आवर फॉलिकुलर सेल्स? द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज हमने ये सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर सिस्टम को ही ब्लॉक कर दिया है. So if we are blocking the entry of our iodide ions, that iodide ions now will not be able to get converted into iodine, and अगर iodine ही नहीं रहेगा, so definitely there will be decrease in the release as well as synthesis of our thyroid hormone. Why? Because हमने previous video lectures में पढ़ा था कि for the synthesis of our thyroid hormone, ये जो आयोडीन होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स. तो अगर आयोडीन ही प्रेजेंट नहीं होगा, सो डेफिनेटली जो सिंथेसिस ऑफ अवर थायराइड हार्मोन होगा वो भी कम हो जाएगा. एंड अगर सिंथेसिस अगर डिक्रीज हो गया है, सो डेफिनेटली जो रिलीज ऑफ अवर T3 एंड T4 होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा. एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इन द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म. So, if we inhibit this importer system, the iodide will not enter the follicular cells, and thus there will be decrease in the level of T3 and T4. Now the question is कि ये जो important class of medication होती है, इसमें कौन से important drugs आते हैं? So we have our first important medication that is known as perchlorate. Then we have pertectinate, and finally we have thiocyanate. Now the important concept that we need to understand is कि ये जो drugs होते हैं ये बहुत ज़्यादा toxic होते हैं, and toxic होने के वजह से we are not using this particular class of medication clinically. Why? Because जो पहला reason है that is of toxicity, and second reason is कि हमारे पास और भी better alternatives available है by which we can decrease the levels of our thyroid hormone. So these drugs, that is our sodium iodide symporter inhibitor, usually हम clinical practice में use नहीं करते हैं. Now important point about thiocyanate is कि ये जो thiocyanate होता है that is present in the cabbage, and ये क्या करता है, there is increased risk of a goiter. So that was about our very first class of medication that is useful in the treatment of hyperthyroidism, and that is sodium iodide symporter inhibitor. Now let's move on to our second important class of medication, and that is known as thyroid peroxidase inhibitor, जिसको हम एंटी थायराइड ड्रग्स भी बोलते हैं. Now before moving on to the mechanism of action, we need to revise some basic important concept. हमने ये पढ़ा था in our previous video presentation कि ये जो आयोडाइड है अगर ये एंटर कर जाता है, this iodide is getting converted into our iodine, and this conversion of our iodide, that is I minus, to our iodine, that is basically known as a very important step जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. Now हमने बोला था कि ये जो हमारे follicular cells होते हैं, यहाँ पे can you see this straight lined structure in the middle of our follicular cells? That my dear friend is known as thyroglobulin. And हमने एक important amino acid यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे जो thyroglobulin होता है, it is having a very good concentration of our tyrosine residues. तो ये जो हमारा iodine है that is getting attached to our tyrosine residues,
एंड दिस पर्टिकुलर अटैचमेंट वाला जो फेज होता है दैट इज बेसिकली नोन एज द फेज ऑफ ऑर्गेनिफिकेशन। फिर हमने पढ़ा था कि देयर इज MIT एंड देयर इज अ DIT। तो व्हेनेवर देयर इज अ कपलिंग, यानी कि जब एक MIT एंड एक DIT जब साथ में आते हैं, देयर विल बी द सिंथेसिस ऑफ आवर T3 हार्मोन। एंड जब दो DIT साथ में कपल हो जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, then that particular hormone is known as a T4। and जब भी सिग्नल आएगा there will be release of our T3 as well as T4 hormone, and this particular phase is known as coupling phase। अब ये जो तीनों के तीनों जो फेज होते हैं that is mediated by a very important enzyme, and that particular enzyme is known as thyroid peroxidase। so now just think logically, अगर हमको थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल अगर कम करना पड़ेगा तो डेफिनेटली बाय इनहिबिटिंग अवर थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम, ये जो तीनों इंपॉर्टेंट फेज है दैट इज ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन एज वेल एज कपलिंग ऑफ द आयोडीन, उसको अगर हमने इनहिबिट कर दिया so definitely there will be reduction in the synthesis of our thyroid hormone, एंड अल्टीमेटली अगर सिंथेसिस ही कम होगा तो डेफिनेटली जो रिलीज ऑफ अवर थायराइड हार्मोन है वो भी कम हो जाएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अवर थायराइड पर ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो ये जो थायराइड पर ऑक्सीडेज इनहिबिटर होते हैं दे विल इनहिबिट अवर एंजाइम दैट इज थायराइड पर ऑक्सीडेज। तो बाय इनहिबिटिंग दैट पर्टिकुलर एंजाइम, जो भी वो एंजाइम के काम होते हैं दैट इज ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन एज वेल एज कपलिंग ऑफ आयोडीन, वो अब ये एंजाइम नहीं कर पाएगा। सो देयर विल बी डिक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4, and ultimately it will help in the treatment of hyperthyroidism। why? because अगर सिंथेसिस ही कम है so definitely the release of thyroid hormones भी कम हो जाएगा, and it will be very beneficial in the patient who is suffering from hyperthyroidism। now let us understand कि इसमें कौन से important groups of medications आते हैं। तो ये जो ड्रग्स होते हैं इनको हम थायोनामाइड्स बोलते हैं या फिर इसको हम थायोअमाइड्स बोलते हैं। नाउ ये जो थायोनामाइड्स होते हैं इसमें वी हैव mainly two important drugs। The very first important drug is carbimazole and methimazole, and the second important drug is propyl thiouracil, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PTUB बोलते हैं। Now let us understand what is the important concept of our carbimazole and methimazole and propyl thiouracil के बीच में what is the main important difference। तो ये जो हमारे ड्रग्स होते हैं नेमली कार्बिमाजोल एंड मेथिमाजोल, दिस आर हाई पोटेंसी ड्रग। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये जो प्रोपाइल थायोयूरासिल होता है दैट इज लो पोटेंसी मेडिकेशन। कार्बिमाजोल एंड मेथिमाजोल का जो हाफ लाइफ होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोपाइल थायोयूरासिल दैट इज PTU। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कार्बिमाजोल एंड मेथिमाजोल होता है दे कैन क्रॉस द प्लासेंटा एंड दे कैन कॉज द टेराटोजेनिक इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड ये जो प्रोपाइल थायोयूरासिल होता है ये ट्रांसफर द प्लेसेंटा, उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होता है एज कंपेयर टू कार्बिमाजोल एंड मेथिमाजोल। There is no peripheral conversion seen in condition of when we are using the drugs carbimazole and methimazole। On the other hand, ये जो propyl thiouracil होता है they inhibit the peripheral conversion। Now my dear friends, यहाँ पे एक important concept आता है कि what do we understand by the concept of peripheral conversion, मतलब क्या होता है। तो पेरिफेरल कन्वर्जन का मतलब होता है वी नो कि जो हमारा एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन होता है दैट इज अवर T3, एंड जब हमारा जो थायराइड हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं
मेजॉरिटी ऑफ अवर थायराइड हार्मोन जो रिलीज हो रहा है दैट इज T4। एंड हमें ये पता है कि ये जो T4 होता है दैट इज रिलेटिवली इनएक्टिव एज कंपेयर टू अवर T3। तो ये जो T4 का T3 में कन्वर्ट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस पर्टिकुलर T4 to T3 conversion is mediated by a very important enzyme and the name of that enzyme is 5 prime deiodinase। तो ये जो कार्बिमाजोल एंड मेथिमाजोल जो ड्रग्स है ये इस एंजाइम को इनहिबिट नहीं करता है। ऑन दी अदर हैंड ये जो प्रोपाइल थायोयूरासिल होता है ये पर्टिकुलर एंजाइम को इनहिबिट करता है सो दैट ये जो T4 से T3 का जो कन्वर्जन है वो भी उस वजह से रुक जाता है। So that is a very important point of difference between our two important medications, that is carbimazole and methimazole and our propyl thiouracil। अब ये जो ड्रग्स होते हैं कार्बिमाजोल एंड मेथिमाजोल ये हिपैटोटॉक्सिसिटी शो नहीं करते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये जो प्रोपाइल थायोयूरासिल होता है दे शो अ हिपैटोटॉक्सिसिटी, यानी कि ये लीवर डैमेज करने की प्रोबेबिलिटी रख सकता है इन द लॉन्ग टर्म। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो कार्बिमाजोल होता है दैट इज अ प्रोड्रग एंड ये जो कार्बिमाजोल है it is getting converted into its active form after the conversion to methimazole। So in the condition of hyperthyroidism in the first trimester of a pregnancy जो हमारा drug of choice होता है that is our PTU। Now the question is why PTU is the drug of choice for hyperthyroidism patient in first trimester pregnancy? The answer is very simple। हमने अभी पढ़ा था कि ये जो प्रोपाइल थायोयूरासिल होता है इट इज हैविंग अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी टू क्रॉस अवर प्लेसेंटा। तो अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग अगर प्लेसेंटा को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा सो डेफिनेटली इट कैन नॉट कॉज अ हार्मफुल इफेक्ट टू द बेबी, यानी कि ये जो टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है ये शो नहीं करेगा। एंड हमें प्रेगनेंसी में ऐसे ही ड्रग्स चाहिए जो बेबी को हार्म ना पहुंचाए, दैट मीन्स जो टेराटोजेनिक इफेक्ट शो ना करे। तो प्रोपाइल थायोयूरासिल इज अ सेफ ड्रग which is useful in the condition of hyperthyroidism patient in the first trimester of pregnancy। Now the question is कि ये जो मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल होता है उसमें से हम क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं? तो the answer is we prefer methimazole over the carbimazole and methimazole is a drug of choice for the treatment of chronic hyperthyroidism। So remember PTU that is propylthiouracil is a drug of choice for hyperthyroidism patient in the first trimester of pregnancy। Methimazole is a drug of choice for chronic hyperthyroidism। Now for the second and the third trimester carbimazole or methimazole is considered as a drug of choice। बट ये जो कार्बिमाजोल या फिर मेथिमाजोल होता है दे आर contraindicated in the first trimester of pregnancy। Now the question is why this carbimazole and methimazole they are contraindicated in first trimester of pregnancy? The answer is very simple। ये जो ड्रग्स होते हैं दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एज यू वी कैन सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पे जो कार्बिमाजोल एंड मेथिमाजोल होता है दे कैन ट्रांसफर अक्रॉस द प्लेसेंटा एंड इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ ट्रांसफरिंग अक्रॉस द प्लेसेंटा इज वेरी वेरी हाई। तो अगर कोई ड्रग प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर देती है इट कैन क्रिएट अ हार्मफुल टेराटोजेनिक इफेक्ट। तो इसीलिए टेराटोजेनिक इफेक्ट ना हो बच्चों में इसीलिए ये जो ड्रग होते हैं कार्बिमाजोल एंड मेथिमाजोल दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ अगर हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेट सपोज कार्बिमाजोल एंड मेथिमाजोल अगर पेशेंट को दे ही दिया so what are the harmful teratogenic effects which can be seen in that particular baby? So the very first condition जो हो सकती है बेबी में
दैट इज एप्लेशिया क्यूटिस। नाउ ये जो एप्लेशिया क्यूटिस होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो स्किन होती है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाती है इन दैट पर्टिकुलर बेबी। तो दैट इज हेंस ये जो ड्रग होते हैं दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। देन सेकेंड जो हार्मफुल टेराटोजेनिक इफेक्ट हो सकता है दैट इज कोएनल एट्रेशिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो कोएनल एट्रेशिया होता है इसका मतलब क्या होता है? तो कोएनल एट्रेशिया इट इज अ कंडीशन जहाँ पे जो नेजल टिश्यू होते हैं blocks the nasal airway. I will show you a image of Aplysia cutis as well as choanal atresia. So as you can see on your screen, on your left hand side, here is our baby who is having a teratogenic effect, that is Aplysia cutis. यहाँ पे जो पेशेंट की जो स्किन है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाती है एज इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बेबीज इमेज। सेकेंड कंडीशन जो हमने देखी थी दैट इज ऑफ कोएनल एट्रेशिया। एंड व्हाट वाज दैट कोएनल एट्रेशिया? कोएनल एट्रेशिया में इट इज अ कंडीशन इन विच जो नेजल टिश्यू होते हैं दे ब्लॉक द नेजल एयरवे। तो एज इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इमेज, यहाँ पे जो आपको कोएनल एट्रेशिया के लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेज है दैट इज ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। एंड जो सेकेंड आपके राइट हैंड साइड में जो आपको इमेज दिख रही है दैट इज ऑफ कोएनल एट्रेशिया। तो एज यू कैन वेरी वेल सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज, यहाँ पे जो पेशेंट का जो नेजल एयरवे है वो ब्लॉक हो चुका है एंड दैट माय डियर फ्रेंड कंडीशन इज नोन एज कोएनल एट्रेशिया। देन जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन पेशेंट में हो सकती है दैट इज ऑफ ईसोफेजियल एट्रेशिया। तो व्हाट इज दिस ईसोफेजियल एट्रेशिया? तो ईसोफेजियल एट्रेशिया यहाँ पे क्या होता है, द पार्ट ऑफ बेबीज ईसोफेगस डज नॉट डेवलप प्रॉपरली। तो आई विल शो यू द इमेज ऑफ ईसोफेजियल एट्रेशिया। So यहाँ पे we have the image of a baby who is suffering from esophageal atresia and यहाँ पे you can see तो बेबी का जो ईसोफेगस है वो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुआ है। So that is a teratogenic effect seen in the patient when we are giving carbimazole or methimazole in the first trimester of a pregnancy। इसीलिए इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ये जो दोनों ड्रग्स होते हैं दैट इज कार्बिमाजोल एंड मेथिमाजोल दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। एंड अभी हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है दैट इज अवर प्रोपाइल थायोयूरासिल। तो अगर एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी एंड वहां पे कोई भी आपको ट्राइमेस्टर नहीं दिया हुआ है तो यू आर गोइंग टू मार्क प्रोपाइल थायोयूरासिल। एंड अगर वहां पे ट्राइमेस्टर आपको मेंशन करके दिया है सो इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर द ड्रग ऑफ चॉइस इज अवर प्रोपाइल थायोयूरासिल। एंड अगर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर है then carbimazole or methimazole is considered as a drug of choice, but mainly हम methimazole use करते हैं for the treatment of chronic hyperthyroidism। So that was all for our today's video lecture. In our today's video presentation, we understood a very important concept, that is we covered up the topic of hypothyroidism की treatment and हमने hyperthyroidism में two important class of medication पढ़े। The very first one was sodium iodide symporter inhibitor and the second one जो हमने अभी पढ़ा that is our thyroid peroxidase inhibitor। So that was all from my side. In our next video presentation, we are going to understand more important class of medication which can be useful in the treatment of hyperthyroidism। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल, press that bell icon, like this video and share it with your friends।
See you in the next video presentation. Till then, see ya, bye bye. Have a good day.